Good afternoon, students of the BSc third year classes. The related subject is the zoology, and in the back-to-back lecture of the previous classes, we are just mentioned that about to the regarding to the new topic is the biotechnology in the process of the biotechnology. In the biotechnology, the genetic engineering process which are going on. For that, to the genetic engineering processes, that is the numbers of the tools which are wanted and required, and that is the mention into the second previous lecture. So that in this lecture, that is the what is the procedure of the genetic engineering or the recombinant DNA technology, so that to the sequential steps of the genetic engineering or recombinant DNA technology. In the short form, recombinant DNA technology. So that we are just go now to the topic of to the what is the process, main process of the genetic engineering. The manipulation in the gene which are formed to the different products and the procedure which which utilize after the living organism and their derivatives, so that to the what is the procedure and the events, sequence, steps and the enzymes, tools and techniques, so many things. So that first of all, what is the procedure which are involved into the genetic engineering process? There are 4 processes which are going on in the genetic engineering processes or recombinant DNA technology. First is the isolation of desired gene. Second is identify selection of vector DNA molecule, selection of vector DNA molecule. Third is the combination of to the vector and DNA molecule, that is the insertion of to the desired gene, insertion of desired gene in vector DNA and form to the vector DNA molecule producing a recombinant DNA molecule and producing recombinant DNA molecule, and fourth and last is cloning of recombinant DNA. Cloning of recombinant DNA. There are the 4 processes, 4 steps in the genetic engineering which have to the numbers of the
sub steps and the sequence and the steps. So first of all we are goes to the how's the procedure which are involved for that to the obtain desired gene and the vector gene. So first of all बिगिनिंग ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो इस लेक्चर में हम जो है स्टेप समझ रहे हैं, प्रोसीजर को समझ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, और थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है. नेथन्स और जो है स्मिथ ने होमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, नेथन्स एंड स्मिथ ने इसको नाम याद रखें, नेथन और स्मिथ ने 1970 में सबसे पहले हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से जो है सबसे पहले नाथन एंड स्मिथ की बात आती है. हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की इन्होंने खोज की. कब? जबकि जो फेज वायरस होता है, फेज वायरस जो कि बैक्टीरिया के लिए होता है, वो उस पे जबकि अटैक करता है तो इस वायरल फेज के डीएनए को, फेज के जो डीएनए होते हैं उसको चेक करने के लिए जो बैक्टीरिया जो होता है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है उस समय. क्या करने के लिए? चेक करने के लिए. मतलब जो ये फेज डीएनए है इसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, इंटीग्रेट कर देगा, मतलब इसको जो है पूरी तरीके से तोड़ देगा और इसकी प्रवृत्ति को ख़त्म कर देगा, जिससे इसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा. तो उसी समय नेथन्स एंड स्मिथ ने हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जो बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है. जैसा मैंने बताया कि 6 नाइट्रोजनस जो बेस सीक्वेंस होते हैं, अनुक्रम होते हैं, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस होते हैं, वो उस डीएनए सीक्वेंस पे जहाँ पे पाए जाते हैं वहीं से ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करते हैं, वो वहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं. और तो इसके आधार पे ही हम पूरे जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो प्रोसेसेस है, इन द 6 nitrogenous base sequences where are the restriction enzyme which are cleaved off to the DNA segment, so that this is the biggest discovery for that to the foundation lay in the completion of the genetic engineering process. So this is the very important. तो आपने देखा कि नाथन स्मिथ का क्या रोल था और कहाँ से जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया. और हमने आपको ये भी बताया था कि 250 से अधिक जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उसकी आज तक खोज हो चुकी है, जिसके माध्यम से जो है ये आर्टिफिशियली या फिर कह सकते हैं विट्रो कंडीशन में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस हो रहा है उसको हम या वैज्ञानिक परफॉर्म कर पा रहे हैं. तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं. तो हम पहले एक एक स्टेप को लेंगे और एक एक स्टेप के हिसाब से समझते हैं. तो पहले स्टेप जो कि है, पहला फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन. अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा डिज़ायर्ड डीएनए या डिज़ायर्ड जीन क्या है. जैसा मैंने बताया था, तो सबसे पहले स्टेप में पहला स्टेप लेते हैं और इसमें पहले में ए लेते हैं. एक स्टेप पहला सब स्टेप है. तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया, एज यू मेंशन दैट इनटू द प्रीवियस लेक्चर, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू टेक टू द प्लांट or animal tissue
from the for the obtained to the desired gene due to the presence of to the enzyme lysozyme enzyme to dissolve to the cell wall or the plasma membrane of to the cell and extracted from the DNA. तो ये पहले स्टेप में आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन का जो प्रोसेस है उसमें पहले स्टेप में क्या करते हैं हम क्या करते हैं लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग जो एंजाइम है लाइजिंग एंजाइम उसका यूज़ करते हैं जिसको हम लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम है, ये क्या करेगा, मैंने जैसा बोला प्लांट हो चाहे एनिमल हो वो दोनों के रेफरेंस में, प्लांट और एनिमल दोनों के रेफरेंस में जो है वो या तो आप प्लांट टिश्यू ले रहे हैं, प्लांट या फिर एनिमल टिश्यू जो आप ले रहे हैं इस जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए टिश्यू को हमने लिया। अब क्या करना है हमें, ये यहाँ से जैसे हमने एनिमल टिश्यू को लिया तो यहाँ से एक सेल से हमें एक्सट्रैक्ट करना है डीएनए को। तो अब जबकि प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल भी होगा, एनिमल सेल होगा तो सेल वॉल नहीं पाया जाता, उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो डिजॉल्व टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द लाइसोजाइम लाइजिंग एंजाइम, यहाँ से इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से, सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से इस डीएनए को क्या करते हैं हम, डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब वहाँ से क्या कर लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे। एक एक स्टेप आप समझें। लाइजिंग एंजाइम के अंतर्गत बहुत ही आराम से हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यूज़ और जो है सेंट्रीफ्यूगेशन जो कि डीएनए को निकालने के लिए किया जाता है, वहाँ से किया जाता प्रोसेस में करते हैं। अब इसके बाद आफ्टर दैट टू द यूजिंग ऑफ, तो यहाँ पे देखें दो प्रोसेसेस हमने जैसा बताया था आपको पिछले भी लेक्चर में, तो दो प्रोसेसेस के अंतर्गत पहला जो प्रोसेस है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे, अब जबकि ये तो पहला प्रोसेस हो गया, अब दूसरे प्रोसेस में बी पे चलते हैं। बी पे क्या होगा, अब जबकि वहाँ से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है तो हमें डिज़ायर्ड जीन प्राप्त करना है। तो इस डीएनए से क्या करेंगे हम, डीएनए से डिज़ायर्ड जीन को प्राप्त करने के लिए, डिज़ायर्ड जीन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस फॉर दैट टू द ऑब्टेन टू द डिजायर्ड जीन एंड along with the formation of to the recombinant DNA molecule of the vector gene। तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करते हैं जो कि डीएनए हम पा चुके हैं। अब हमको क्या करना है, डिजायर्ड जीन को प्राप्त करना है, मतलब इस डीएनए को इस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के माध्यम से क्या करेंगे, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ऐसे हम लिख लेते हैं जी। अब यहाँ पे सीक्वेंस पे हम लिखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी ए टी टी सी और दूसरे अनुक्रम में हम लिखेंगे सी टी टी ए और जी। अब देखें ये एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे भाई ये क्या है, डीएनए स्ट्रैंड होता है। दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड विच नेम्ड एज टू 5 प्राइम टू 3 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड्स है, डबल डुप्लेक्स है। और यहाँ से ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, ये 1 प्यूरिन और 1 pyrimidine विच आर जॉइंट टुगेदर, यहाँ पे हमने दिखाया। पिछले लेक्चर में भी बताया मैंने कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस वी आर वहाँ पे वर्क करता है जहाँ पे उसको 4 या 6 या उससे अधिक जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस विपरीत अवस्था में वहाँ पे प्राप्त हों, उसी तरीके से प्राप्त हों, तो वहाँ पे उस टारगेट साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर ही वो वहाँ पे उसको क्लीप करेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं और इस सीक्वेंस पे उसको काट के उस डिजायर्ड जीन को या डीएनए स्ट्रैंड को वहाँ से अलग कर लेते हैं। ये तो दूसरा प्रोसेस हुआ। तो हम लोगों ने डिजायर्ड जो मतलब वहाँ से इस डीएनए से उसको
छोटे से डीएनए पार्ट्स को, सेगमेंट को अलग कर लेते हैं। अब थर्ड में इसमें चलते हैं, पहले ही अभी चल रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन को के अंतर्गत हम स्टेप वाइज चल रहे हैं, स्टेप वाइज प्रोसेसेस को देख रहे हैं। और स्टेप वाइज प्रोसेसेस के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि लगातार जो है उसमें प्रोसेसेस चल रहा है, प्रोसेसेस विच आर विल बी गोइंग ऑन। आफ्टर दैट टू द ऑब्टेनिंग टू द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है डीनेचुरेशन प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। डीनेचुरेशन प्रोसेसेस, कौन सा प्रोसेस? डीनेचुरेशन। In the first lecture, when we are start of the biotechnology process, is the first discovery is the denaturation and renaturation character of the DNA is a very must। तो यहाँ पे देखें denaturation process करेंगे, तो denaturation के लिए हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे हीटिंग प्रोसेस करेंगे, मतलब टेम्परेचर इसको देंगे। तो टेम्परेचर से देंगे तो आप जानते हैं कि अगर हमने यहाँ से छोटा सा सेगमेंट प्राप्त किया है, जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा सेगमेंट प्राप्त कर लिया है, तो उसके माध्यम से क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये डबल डुप्लेक्स जो है वो इसमें इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हीटिंग देने के बाद ये जो है ये यहाँ पे फास्फो, चूँकि क्या होती है जब डीएनए जो होती है वो जो तीन बेसिक, देयर आर द थ्री बेसिक एलिमेंट्स विच आर कंबाइंड टुगेदर एंड दैट इज द फॉर्म टू द डीएनए मॉलिक्यूल एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, सो दैट टू द ईच ऑफ द कंपोनेंट विच आर ज्वाइंड टू द अदर bonds, a specific bond in between to the nitrogenous basis is the hydrogen bonds, pentose sugar, and to the phosphate group the phosphodiester bond. So here to the, अब यहाँ से ये जो बीच में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं ये हीटिंग करने पे अलग हो जाती हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपस में अलग हो जाती हैं। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जब अलग हो जाती हैं तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड में अलग अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद क्या होगा, तो अलग होने के बाद उस सीक्वेंस में हम ये देखेंगे कि जो अब डीनेचुरेशन प्रोसेस में हमने हीटिंग दिया तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें प्राप्त हो गया। अब इस सिंगल डीएनए जो जीन है ये जिसमें जीन पाया जा रहा है, इससे बनने वाला, जो आप जानते हैं कि डीएनए से ही आरएनए बनता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसेस होता है, जो टीआरएनए बनता है, तो मैसेंजर आरएनए बनता है। तो मैसेंजर आरएनए इस सिंगल स्ट्रैंडेड जो हमारा डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड, अब इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बनने वाला जो एमआरएनए, अब इससे क्या कर दिया जाता है, इसके साथ में सम्मिलित कर दिया जाता है, सम्मिश्रण कर दिया जाता है, मिक्सअप विद द एमआरएनए विच आर फॉर्म्ड बाय द जीन ऑफ टू द डिजायर्ड जीन ऑफ टू द डीएनए। तो डिजायर्ड जीन जो डीएनए है उससे एमआरएनए बनता है और इसके साथ में ये इस टेम्पलेट पे आके ज्वाइन कर लेता, मतलब क्या बनेगा, देखें इस प्रकार से बना लेगा, क्या बनाएगा, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाता है, डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब किस पर, डीएनए के टेम्पलेट पर ये एमआरएनए आके जुड़ जाएगा, सम्मिश्रण करते हैं उस पर जुड़ेगा और ये इसका फॉर्मेशन कर लेगा। संदेशवाहक जिसको बोला जाता है मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन इसके बाद अगले स्टेप में चौथे, जिसको हम डी लिख सकते हैं, डी में क्या करेंगे, इस जो एमआरएनए है इसमें यहाँ से जो सिंगल स्ट्रैंडेड एक डीएनए है, एक आरएनए है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए को क्या कर लेंगे, हटा देंगे, एमआरएनए को यहाँ से निकाल देंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करेंगे, किस पर, इस पर सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है यहाँ पे इसका
टेम्पलेट पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे तो ये यहाँ से कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा, कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए विच आर फॉर्म्ड देन टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, तो वो डीएनए मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस प्रकार से हम आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन जो पहला टॉपिक था, इसको पहला जो पॉइंट था, इसको हमने प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से देखिए हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि एंजाइम है ये यहाँ से प्राप्त किया और डीएनए का फॉर्मेशन डिज़ायर्ड जीन को हमने प्राप्त कर लिया। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअल में होता क्या है इसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो क्या होता है इसमें, अब जबकि हमने एक तरफ जो है डिज़ायर्ड जीन को प्राप्त किया है तो दूसरी तरफ सिलेक्शन करना है हमें वेक्टर डीएनए। हम आपको बता दें कि द साइंटिस्ट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन the bacteria for that to the genetic engineering process, because the bacteria which are used in the genetic process is the E. coli bacteria। तो यहाँ पर अब हम जबकि वेक्टर कहते हैं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि फॉरेन डीएनए अलग होता है, वेक्टर डीएनए अलग होता है। अब वेक्टर जो है यहाँ पर वो होते हैं जो कि साइज़ में छोटे होने चाहिए। इसका ये रिक्वायरमेंट है, ये देखें कि ये साइज़ में बहुत ही छोटे हों, ठीक है, और इनके पास कैपेबिलिटी हो, पोटेंशियल हो कि वो डिज़ायर्ड जीन को कैरी कर सकें, डिज़ायर्ड जीन को क्या कर सकें, डिज़ायर्ड जीन को कैरी कर सकें, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि डिज़ायर्ड जीन को कैरी करने की जो पोटेंशियल होती है उसके बाद किसी होस्ट में इंजर्ट कर सकें, इंजर्सन कर सकें और इंजर्सन करके वहाँ पे क्लोन बना सकें। तो ये यहाँ पे किसका गुण होना चाहिए, वेक्टर का गुण होना चाहिए। और विशेषकर जो वेक्टर होते हैं, हम आपको बता दें दूसरे सेंटेंस में, वेक्टर जो होता है वो बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड होता है, हम अभी प्लाज्मिड की चर्चा करते हैं। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। दैट इज़ द मैक्सिमम role of the vector in the laboratory condition using by the scientist is the plasmid from the bacteria, and others to the bacteriophage, phagamid, cosmid, बहुत सारे जो है ये सब जो क्या कहते हैं वेक्टर्स पाए जाते हैं प्लाज्मिड के रूप में। अब ये प्लाज्मिड जो होगा, प्लाज्मिड क्या होता है, ये देखें आप, प्लाज्मिड जो है ई कोलाई जो स्पेशल बैक्टीरिया होता है उसमें जो उसका डीएनए होता है उसके अलावा एक जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जो कि प्लाज्मिड कहलाता है। इसके लाइफ से या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, इसके सर्वाइवल से कोई मतलब नहीं होता, जबकि ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक्स को जनरेट करता है, क्योंकि इसमें विशेषकर 3 फैक्टर होते हैं। हम यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं। एक एफ फैक्टर होता है जिसको आपको फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एक कॉल फैक्टर होता है, और एक जो है तो प्लाज्मिड जो होता है वो बहुत ही उपयोग इसका व्यापक रूप से किया जाता है और जो है इसका यूज किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में इसका रोल है। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड होते हैं किसी भी बैक्टीरिया में 1 से 100 की संख्या में पाए जाते हैं, 1 to 100 in number which found in the bacterial cell. So this is the used in the broad manner. अब यहाँ से इस प्लाज्मिड को जो कि एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, अब ये क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है वेक्टर डीएनए का
तो जैसा मैंने बोला कि प्लाज्मिड के रूप में जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, इसका जो है बैक्टीरिया के लाइफ से संबंधित एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, जबकि ये एंटीबायोटिक्स या एंटी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको प्रोड्यूस करता है। और इस प्रकार से जो बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो 1 से 100 की संख्या में होता है। और इस प्रकार से जो बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड जो है एंटीबायोटिक्स जो हमने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता को जो है प्रदान करता है, ये बैक्टीरिया के जीवित रहने और वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते, जबकि ये एंटीबायोटिक्स को प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। अब इसको क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया से इनको बहुत अच्छी तरीके से निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। वो प्रोसेस होता है कि बैक्टीरिया को जो है संवर्धन, कल्चर किया जाए, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया का क्या किया जाए, कल्चर किया जाए। कल्चर कैसे किया जाएगा, फेनिकॉल जो है, जो क्लोरोफेनिकॉल जो नामक जो अभिकर्मक होता है, हिंदी में बोला जाता है, इसको मिलाया जाता है किसमें, ये कल्चर में। और तब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल जीनोम होता है, बैक्टीरिया का डीएनए होता है, जो कि उसके ग्रोथ एंड लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपनी रेप्लिकेशन करना या फिर एक्टिविटी करना बंद कर देता है। और जैसे ही स्टॉप होता है तो ये जो क्या प्लाज्मिड होता है, ये अपना रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से होता है इसमें, प्रोलिफरेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो प्रोलिफरेशन से तेज़ी से होने के कारण इसका जो है इस्तेमाल, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे होता है, क्योंकि इसमें एक ही टारगेट साइट पाई जाती है इसके अंतर्गत, और एक ही इनिशिएशन जो है साइट होती है, जो कि हमने जैसा बताया कि यूकैरियोटिक सेल डीएनए की तरह ये वर्क करता है। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने इसको जो है आसानी से यहाँ पे प्राप्त होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो जैसा मैंने बताया, क्लोरोफेनिकॉल का यूज करके बैक्टीरिया के जो इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको रोक देता है, जबकि ये प्रोलिफरेट करने लगता है और ज़्यादा की संख्या में बनने लगता है। तो वहाँ से इसको प्लाज्मिड को निकाल लिया जाता है, और इस प्लाज्मिड को यही जो प्लाज्मिड निकाला जाता है, यही वेक्टर मॉलिक्यूल्स के रूप में, डीएनए के रूप में प्राप्त होता है। तो ये दूसरे प्रोसेस में हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ द वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल कैसे किया जाता है। अब तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरे में। तो तीसरे के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो क्या कहते हैं, इंजर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन इन द वेक्टर डीएनए प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब यहीं से जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बार बार बात कर रहे थे, है ना, दैट इज़ द process of the genetic engineering or the recombinant DNA technology, which are segment of the DNA to remove and combine with the segment of the other DNA। तो वहाँ से निकल के और क्या बना लेते हैं, रिकम्बिनेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो रिकम्बिनेंट, तो ये कैसे बनेंगे इसको हम देखते हैं। तो इस आधार पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या जो है प्रक्रियाएं वहाँ पे होती हैं, चलती हैं, और वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम जो है इंजर्शन ऑफ द डिजायर जीन इन द वेक्टर प्रोड्यूसिंग टू द रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों जो अणु होते हैं, और यहाँ पे दोनों अणु उसको क्या करते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमको समझनी है कि ये जो प्लाज्मिड है या फिर वेक्टर है जो हमने प्राप्त किया है, यहाँ पे इसको दो तरीक़ों से काटा जाता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वहाँ पे बताया था कि 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होते हैं, 6 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस हैं, और उस 6 नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस में इसको देख लेते हैं। क्या मैंने बताया था, GTTAAC, उसी प्रकार से CAATT, और क्या था, और जो है इस प्रकार से
T और G, ये तो अब ये नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस हमें प्राप्त करना है, तो हम इसको कैसे कट ऑफ करेंगे? तो दो तरीके हैं, एक स्टैगर्ड कट होता है और एक जो है ब्लंट कट होता है। तो स्टैगर्ड कट का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, जो डीएनए है, उसके किसी एक पॉइंट से कट एक स्ट्रैंड पे किया जाए और वही दूसरे पॉइंट पे भी कट किया जाए। तो इस प्रकार का जब कट होता है तो उसको स्टैगर्ड कट बोलते हैं, स्टिकी एंड बोलते हैं। और जब कभी नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस जो डीएनए डुप्लेक्स है उसके किसी एक समान क्रम पे काटा जाए तो उसको वह ब्लंट बोलते हैं। तो स्टैगर्ड या ब्लंट आपने जाना, दो तरीके हैं। जबकि हम ऐसे प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्टिकी एंड हो जाएगा, और जब हम सीधे समान रूप से एक समान बिंदु पे काटेंगे तो वो हो जाएगा ब्लंट। तो इस प्रकार से कट करके, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो स्टैगर्ड कट का किया जाता है, जो कि आड़ा होता है, तिरछा होता है। एक एक नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस को काटा जाता है और जाके फिर से वो उसी तो प्लाज्मिड पे, और जो प्लाज्मिड जो वेक्टर है और जो हमारा डिजायर्ड जीन है उस पर कंबाइंड करके और वो जो है जोड़ दिया जाता है और रिकम्बिनेंट को बनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको, तो हम रिकम्बिनेंट देखते हैं। तो देखिए दो डीएनए हैं, इस प्रकार का एक डीएनए और दूसरे प्रकार ये एक वेक्टर डीएनए है इस प्रकार से। तो इनको क्या किया, ये दोनों को कट किया गया है और दोनों को कॉम्बिनेशन किया जाएगा। देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा सा दिखाएंगे आपको इस माध्यम से। देखिए ये लगा दिया हमने कवर। ये क्या हो गया, ये हमारा फॉरेन डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए है। तो वेक्टर डीएनए इसको कैरी कर रहा है, इंजर्शन करेगा और इसके बाद तो ये जो बना ये रिकम्बिनेंट बना, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। और इसके आधार पे ये इसीलिए बोला गया इंजर्शन ऑफ द डिजायर्ड जीन वेक्टर प्रोड्यूसिंग रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। और लास्ट में चौथे में क्या होता है, क्लोनिंग ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए में इसको रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, क्योंकि ये ऐसा होता है जो कि इसकी कॉपी बनाने के लिए इस बेसिक इन्वायरमेंट को रखता है और ये कॉपी का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही होस्ट पाता है तो ये कॉपी प्रति आकृति बनाता है और इसके आधार पे जिस फील्ड के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस प्रोडक्ट के लिए इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन और वेक्टर जीन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से निकाल के यूज किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें इसको यूज किया जाता है और यहाँ से निकाल के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा जो है 4-5 प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है। अब जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लाज्मिड होता है अपने, जब कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा रेप्लिकेशन प्रोसेस करता है तो उसको एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, वहाँ पे उसकी कॉपी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो ये आज का टॉपिक जो था सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, 4 महत्वपूर्ण स्टेप थे और हम समझते हैं, आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड अबाउट टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस, फॉर दैट टू द डिस्क्राइबिंग describing the different steps and the diagrams. So in the related topics which are explained will to the tomorrow. That's thank you.